کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آیت نمبر 74 لی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی مثال پتھروں سے، بعض لوگ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن بعض پتھر جس طرح سے شک ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے خیر نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بہت سخت ہوتے، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے اسلام رکھا جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن فوری پھر اس کو مان لیتے، جو نمبر 1 پر بتایا گیا جن لوگوں کی مثال، جس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ، جیسے ہی ان کے سامنے اسلام آیا اور انہوں نے اس کو سمجھا اور فوری اس کو مان لیا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو بہت اللہ سے دور ہوتے ہیں، لیکن کچھ حادثے زندگی میں یا کچھ بیماری یا کوئی موت اپنے خاص کو، ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ان کو ہلا دیتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے، ان حادثات کی یا تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کی طرف آ جاتے۔ یہ سیکنڈ قسم کے لوگ، نمبر 2 قسم کے لوگ، کہ یہ تکلیفیں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے۔ اور تھرڈ قسم کے لوگ کون سے تھے؟ تھرڈ کیٹیگریز آف پیپل، وہ لوگ جو خوف سے، یعنی خوف، کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخرت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں یا کوئی بھی اللہ کی بڑائی کے بارے میں سن کے فوری ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اس کے سامنے۔ نہیں پتا اللہ کی بڑائی کے بارے، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے ان کو اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کس طرح سے دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، تو پھر وہ اس کے خوف سے کیا ہو جاتے ہیں؟ رونے لگ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اللہ نے کہا ہے کہ ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو نہ تو کوئی، اچھا جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں نا، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو بظاہر دین میں بہت کٹر ہوتے ہیں، کٹر پنتھ ہوتے ہیں، بہت دین میں شدید ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں بہت سختی کے ساتھ، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن جیسے ہی ان کو کوئی بتا دیتا ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ سنت سے ثابت، یا یہ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، مثال کے طور پر آپ نماز کے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرضوں کے اذکاروں کے بجائے آپ کوئی اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ، یا پھر آپ اللہ کا ذکر جو ہے اپنے ہاتھ پر نہیں، آپ تسبیح پر کر رہے ہیں، یا نماز کے بعد آپ اللہ کے ذکر کی بجائے دعا مانگ رہے ہیں، یا ایسے ہی کچھ انسان کے بعض انسان اپنے عمل میں اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ بہت شدید ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا نماز کا طریقہ، کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ اچھا رسول اللہ ایسا نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسا پڑھتے تھے، آپ وہ کیا کرتے ہیں؟ فوری بدل دیتے ہیں اپنے آپ، فوری اپنے آپ کو اسی طریقے پر لا لیتے، خشیت سے، اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈر جاتے، مان جاتے ہیں وہ اللہ کی بات۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھتے، لیکن بعض بہت آسانی سے سمجھ جاتے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ۔ لیکن وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی؟ وہ لوگ کہ جن کو کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی چیز، ان کو کوئی حق ان کے سامنے لا کے ان کو بتا دے کہ دیکھو یہ حق ہے، قرآن حق ہے، یا پھر کوئی ان کو یہ بتائے کہ دیکھو تمہارا یہ نماز کا طریقہ، تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن ان کو کوئی چیز موڑ نہیں سکتا، کوئی ان کے دل کو نرم نہیں کرتا، تو ایسے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، کہ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ ہی کوئی ان کو، یعنی اللہ کے نزدیک کوئی اور چیز کر سکے، تو اور نہ ہی کوئی چیز سن کر، وہ حق کو سن کر اس کو غور و فکر کرے یا اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے کہ ہاں یہ جو کہا جا رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ تو پھر ایسے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ اڑے رہتے ہیں اپنی ہی بات پر، تو ایسے پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو علم تو بہت حاصل کر لیں،
لیکن عمل نہ، عمل سے خالی لیکچر بہت دینا آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن عمل کیا ہے زندگی کا؟ عمل سے خالی ہے، پتہ یعنی عمل اپنی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں، ان کی مثال بھی ان کے جیسے، وہ بھی ان کے دل بھی سخت ہو جاتے، کیونکہ اس میں آیت میں بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دیے اور کتاب بھی دی، یعنی وہ کتاب عالم بھی تھے، پتہ بھی تھا ان کو، اور پیغمبر بھی تھے، اس کے باوجود کتاب آنے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو دیکھو وہ چیز تم نہیں کرنا، کہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز تو نہیں ہے کہ اب جس وقت ہم قرآن سے جڑے نہیں تھے، ایک ہماری الگ پہچان تھی، ایک ہماری شخصیت الگ، لیکن جب انسان قرآن پڑھنے لگ گیا تو کیا میری زندگی میں کوئی بدلاؤ آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر کہیں ہم بھی اسی کیٹیگری میں نہ شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ ساری مثالیں جو قرآن کی ہوتی ہیں نا، چاہے اللہ تعالیٰ چیزوں کی دے، جیسے مچھر کی مثال پیچھے گزری ہے، یا پتھروں کی مثال ہے، اسی طرح سے آگے چل کے بھی بہت سی مثالیں آئیں گی، چاہے انسانوں کی مثال ہے چاہے چیزوں کی مثالیں ہیں، لیکن قرآن کی ہر مثال انسان کے لیے ایز اے اسٹوری نہیں ہوتا، ایز اے انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا، اس مثال سے عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے، اس سے سیکھنا مقصد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، ہاں تم اس سے سیکھو اور اپنے کمیوں کو دور کرو، اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرو، کہیں تم بھی ایسے نہیں ہو جانا جو ان کا انجام ہوا، کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی شکلیں کر دیا تھا۔ کس وجہ سے ہوئی تھی بندر کی شکلیں؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدل دیا تھا، اللہ نے جیسا کہا ویسا نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق حکم کو ڈھال لیا۔ تو کہیں یہ بات ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی حکم جیسا ہے اس کو ویسا لینے کی بجائے ہم اپنے ماحول کے مطابق، اپنے موڈ کے مطابق یا اپنے ماں باپ کے طریقے پر تو نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو یہ ریلائز کرانا چاہتی ہیں قرآن کی ساری آیات جو بھی ہم نے ابھی پڑھی ہیں، کہ ہر آیت میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ کہیں یہ عمل میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ علم وہی فائدہ مند ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے، ورنہ علماء تو بنی اسرائیل میں بھی بہت سے تھے، بنی اسرائیل میں عالم بہت تھے، لیکن علم کے نام پر کیا تھا، عمل کے نام پر وہ لوگ خالی تھے، عمل ختم ہو گیا تھا۔ آج مسلمانوں کا حال بھی کہیں وہی تو نہیں ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل ہی قرآن سے دور ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو علم میں سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، لیکن مین اہم چیز جو ہے وہ ہے اپنے عمل کو بھی دیکھنا کہ میرا عمل بھی بدلا ہے۔ اگر میرا عمل نہیں بدلا تو پھر اس کا مطلب ہے میرا علم جو ہے وہ ادھورا ہے، مجھے دوبارہ سے پڑھنا چاہیے۔ اگر میری زندگی کا عمل نہیں بدلا تو مجھے اپنے علم پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے علم صحیح حاصل نہیں کیا، مجھے دوبارہ سے پڑھنا چاہیے کہ اگر میری عمل نہیں بدلا ہے۔ اچھا، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے پھر، یا نرم دل لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مومن یا نرم دل لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ سخت نہیں ہوتا، وہ بہت نرم ہوتا ہے، وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اور کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کسی کو وہ تانا دے سکتا ہے۔ یہ مومن کی صفات میں سے نہیں ہے، اور وہ دوسروں کی پریشانیوں سے، دوسرے کی تکلیف سے خود پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کے نرم دل ہونے کی نشانی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لیکچر دینے والے لوگ، نصیحتیں کرنے والے لوگ بہت ہوں گے، لیکن باعمل لوگ بہت کم ہو جائیں گے۔ باعمل لوگ بننے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس زمین پر ایسے کتنے لوگ آ کر چلے گئے جو اپنی بے عملیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے نام و نشان کو بھی ختم کر دیا۔ تم سے بڑے بڑے طاقتور لوگ، قوم لوط، قوم شعیب، قوم ہود، پھر اسی طرح سے بنی اسرائیل جو فرعون، ایسے بہت بڑے بڑے طاقتور لوگ آ کر چلے گئے مال و دولت میں، طاقت میں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا، اللہ کو پہچان نہیں تھی، اور ان کی بدعملیوں کی وجہ سے
اللہ نے آج ان کو کہاں پہنچا دیا۔ کہیں ہم ایسی کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے، یا ہمارا نام مسلمان ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اپنے اعمال کو ضرور چیک کرتے رہیں، اور خاص طور پہ اپنے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں کہ جب بھی کوئی حق بات میرے سامنے آتی ہے میں اس کو قبول کرتی ہوں، یا پھر ایک کان سے ڈال کے دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں، یا پھر میں اس کو ماحول کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، وہ تو اس ماحول میں تھا، اس دور میں تھا، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن شروع سے اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے اتارا اور قیامت تک یہی قرآن رہے گا، اور یہی اللہ کے حکم رہیں گے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ زمانہ کتنا بھی بدل جائے لیکن اللہ کے احکام نہیں بدل سکتے۔ ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ اور ایک بات یہ بھی، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا اتنا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ یعنی زمین و آسمان کی بناوٹ کے بعد، آدم علیہ السلام کی بناوٹ کے بعد، اور پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو بتانے کے بعد کہ انسان کتنی قسم کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ یا ذکر اس لیے زیادہ آیا ہے کہ یہ اس وقت کے مسلمان لوگ تھے، اس وقت جو بنی اسرائیل تھے اس وقت کے مسلمان لوگ تھے، اور ان کی جو عمل تھا اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان تھے، اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنی کتاب کے ساتھ، کہیں تم بھی وہی نہ کرنا جو انہوں نے کیا ہے۔ اب جس طرح سے اگر ہمارے بعد کوئی قرآن یا ہمارے بعد کوئی پیغمبر آتے تھے تو پھر کس کی مثالیں اس میں ہونی تھی؟ ہم لوگوں کی، کہ وہ قوم تھی تم سے پہلے آئی ہوئی، دیکھو اس نے یہ کیا، تو ہمارا ذکر ہونا تھا اگر اس کے بعد اگر قرآن کوئی اترتا تھا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان قوم تھی، اس لیے زیادہ ذکر ان کا آیا ہے۔ جی آیت نمبر 75۔ کیا حروف استفہام ہے سوال کے لیے، کیا تطمعون تم امید رکھتے ہو، تا میم عین اس کا روٹ ہے تمعن، کیا تم امید رکھتے ہو ان کے یؤمنو وہ ایمان لے کر آئیں گے، کون؟ اہل کتاب، کہ تم ان سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لکم تمہارے لیے، وا اور قد تحقیق، فور شور یقیناً، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، فریق فا را کا فرق سے ہے کہ ایک جو گروہ ہے یا ایک گروپ ہے ان میں سے، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتا ہے، یسمعون کا روٹ سین میم عین سمعون، سماعت اسی سے ہے، وہ سنتا ہے کلام اللہ کی، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں یا بدل دیتے ہیں۔ تحریف یحرفونہ حرف سے ہے، ہا را فا اس کا روٹ ہے حرف، اور جس کا معنی جو ہے کنارہ بھی ہوتا ہے، یعنی کسی بات کو اس کے اصل کنارے سے ہٹا دینا تحریف کہلاتا ہے، یعنی کسی بات کو اس کے کنارے سے ہٹا دینا یا اصل سے پھیر دینا، تحریف۔ من بعدی اس کے بعد، ماں اس کے جو عقلوہ سمجھ لیا انہوں نے، عقل کی جمع ہے، وا اور ہم وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب آپ پر ایمان لا لیں گے، یہ مان جائیں گے آپ کو، جبکہ ان میں سے ایک گروہ، ان میں سے یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں، لیکن کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کے جاننے کے بعد، سننے کے بعد یہ اپنے واعظ میں، اپنے لیکچروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے یہ نام تک جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا ذکر کرتے تھے اپنے خطبوں میں کہ ایک نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، کن کو بولتے تھے؟ جو اس وقت کے مشرک لوگ تھے ان کو کہتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، پھر انہوں نے بدل ہی دیا، اپنا ٹون ہی بدل دی، کلام کو ہی بدل دیا، الفاظوں کو بدل دیا تورات کے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ وہ سنتا ہے کلام اللہ کی، ثم یحرفون پھر اس کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں، من بعدی اس کے بعد،
ما अक़लूहु, जो उन्होंने समझ लिया, यानी सोच समझ कर जान बूझ कर वो ऐसा करते हैं, यानी उनको पता है उसके बावजूद वो बदल देते हैं कलाम अल्लाह को। वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। वइज़ा, और जब लाक़ू, मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनु, जो ईमान लाए, कालू, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। यानी यहाँ पर भी अहले किताब की सिफत बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है कि जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं। आमन्ना जो है किससे है? अमन से है, हम ईमान लाए। वइज़, और जब, खला, अलहदा हुए, खला का रूप खा लाम वाव, यानी जब पास आए, बादहुम, बाज उनके, यानी उनके कुछ लोग अपने उल्मा के, वइज़ा खला बादहुम इला बास, यानी जब उनके कुछ लोग अपने उल्मा के पास आते हैं, कालू, वो कहते हैं, आ क्या, तो हदीसुना हो, तुम बातें बताते हो इनको, तो हदीसुना, हा दाल सा इसका रूट है, हदसा बयान करना, क्या तुम इनको वो बातें बताते हो, बिमा, साथ उसके जो, बी साथ माँ जो, साथ उसके जो, फतहा, खोला है, अल्लाहु, अल्लाह ने, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, कि क्या तुम इनको वो बातें बताते हो जो तुमको अल्लाह ने खोली है। यानी बाज़ लोग इनमें से, अहले किताब में से, जब ईमान वालों के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने ईमान का दावा करते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, लेकिन जब वो लोग अपने उल्मा के पास जाकर बताते हैं, उनको कहते हैं, तो उनके उल्मा कहते हैं कि क्या तुम इनको वो बातें बताते हो जो तुम्हारी किताब में है, यानी जो तौरात में है, तुम वो बातें इनको बताते हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या जो कुरान के बारे में जो हक बातें इनकी किताब में थी, कि तुम वो बातें इनको जाकर बताते हो। क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, तुम उनको वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने खोल दी तुम्हारे ऊपर। हाँ, लियुहाज्जूकुम, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे। ये हाजू किससे? लिए, और जो इसका रूट है हा जीम जीम, यानी दलील को भी कहते हैं, ऐसी दलील जो गालिब आ जाए, कि लियुहाज्जूकुम, कि वो तुमसे झगड़ा करेंगे, बिही, साथ इसके, किसके साथ? इस दलील के साथ जो तुमने उनको बातें बताई हैं मुसलमानों को जाके, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों को, तो वो तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे यौमुल हिसाब के दिन। वो तुमने तुम्हारी इन बातों को दलील बनाकर, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की जो सच्चाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की, पैगंबर होने की सच्चाई, क्या तुम इनको बताते हो जाकर कि हाँ हमारी किताबों में भी? क्यों बताते हो इनको जाकर कि यौमुल हिसाब के दिन झगड़ेंगे तुमसे? देखिए कितने नासमझ लोग थे। हाँ, अपनी कौम के लोगों को कह रहे हैं, इतना पता है कि ये इस बात से तुमको पकड़ेंगे यौमुल हिसाब के दिन कि हाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इनको पता था कि ये नबी सच्चे हैं, लेकिन ये हमें बताते नहीं थे। ये पता है, इसलिए रोक रहे हैं कुछ लोगों को कि इनसे मत बताओ जाकर, लेकिन ये नहीं पता कि ये बग़ैर माने हमारी निजात नहीं होगी। ये दिमाग इंसान का कैसा बंद हो जाता है। अफला ताक़िलून, आ क्या, फला, फा फिर ला नहीं, क्या फिर नहीं, ताक़िलून, तुम अकल रखते, यानी तुम अकल नहीं रखते, तुम अपनी किताब की बातें, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की बातें हैं, और तुम जाके इनको बताते हो, और ये यौमुल हिसाब के दिन हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हाँ, तुम्हें अकल नहीं है। यानी अपने लोगों को, बाज़ को ये इस तरह से रोकते थे, और ये पता नहीं है कि जो अल्लाह इतना कुछ जानता है, अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? देखिए तहरीफ जो है दो किस्म की होती है। एक तहरीफ होती है लफ्ज़ी और एक होती है मानवी, यानी एक लफ्ज़ों को बदल देना और एक मानों को बदल देना। तो जो अहले किताब के उल्मा थे वो क्या करते थे? लफ्ज़ ही बदल देते थे। यहाँ है ना, युहर्रिफूना यस्माऊना कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूना, वो फिर उसको बदल देते थे, यानी लफ्ज़ों को ही बदल देते। तो तहरीफ
जो है दो किस्म की होती है, एक लफ्ज़ों को बदलना, एक मानों को बदल देना। लेकिन आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? आज मुसलमान लफ्ज़ तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्या कर रहे हैं? माने बदल दे, माना कुछ का कुछ कर देते हैं, यानी अपनी मनमर्जी के माने निकाल लेते हैं कुरान में से। यानी कुरान में तो नहीं बदलते अपने आप को, बल्कि कुरान को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, आज जो हम मुसलमान कर रहे हैं इस कुरान के साथ। कुरान की ऐसी आयत हैं कि जिनको सूद की ले लें, पर्दे की ले लें, इसी तरह से जो निकाह की ले लें कि जो वो हलाला है। ऐसी बहुत सी आयतें हैं कि जिनका इंसान आज लफ्ज़ों को तो नहीं बदला जा रहा, लेकिन उनके मानों को बदल कर पेश किया जा रहा है। तो वही मिसाल इसीलिए यहाँ पर दी जा रही है अहले किताब की, यहूद और नसारा की, कि कहीं ये चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं हैं। जी, आयत नंबर 77। आ क्या, वला अवला क्या नहीं, यालमु वो जानते, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, यालमु वो जानता है, माँ जो युसिर्रूना वो छुपाते हैं। युसिर्रूना का रूट सीन रा है, सिर, सर हमारा इसी से है, यानी हमारा सर भी क्या है? बालों से छुपा होता है। वमा और जो युलिनून वो जाहिर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि ये क्या समझते हैं कि अल्लाह जानते नहीं ये जो कुछ चुपके चुपके बातें कर रहे हैं, आपस में ग्रुप बना के आपस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये जो साजिशें करते हैं या जो ये तहरीफ कर रहे हैं, ये समझते हैं नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह को वो धोखा दे देंगे कि अल्लाह जानते नहीं। अल्लाह की ज़ात तो वो है, अवला यअलमूना, अल्लाह की ज़ात तो वो भी जानती है, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून, जो तुम छुपाते हो, यानी वो बातें जो तुमने अभी कही नहीं, तुम्हारे दिमागों के ही अंदर हैं, सिर्फ सोचा है तुमने, कहा नहीं कुछ भी, अल्लाह वो भी जानते हैं। वमा युलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो अल्लाह वो भी जानते। वा और मिनहुम, और उनमें से, उम्मीयूना अनपढ़ हैं। उम्मीयून किसकी जमा है? अलिफ मीम, मीम इसका रूट है। उम्मी अनपढ़ को कहते हैं, यानी उतना इल्म जितना बस माँ की गोद से सीखा हो, वो इल्म जो इंसान अपनी माँ की गोद से सीखता है उसको उम्मी कहा जाता है। वमिनहुम उम्मीयूना, और उनमें से बाज़ उम्मी है, ला यालमून वो नहीं, ला नहीं, यालमून वो जानते, आइन लाम मीम इसका रूट है। अल किताब किताब को, इल्ला अमानिया सिवाय ख्वाहिशात से, अमानी मीम नून या इसका रूट है, यानी झूठी तमन्नाएं, झूठी तमन्नाएं। वह और इन और नहीं, अब यहाँ पर इनका माना नहीं क्यों हुआ है? क्यों इनके बाद इल्ला आ गया? ये लाम की वजह से इनका माना यहाँ पर नहीं होगा, नहीं, इनका माना अगर होता है। और नहीं है हम वो, इल्ला सिवाय इसके या मगर, यज़न्नून वो गुमान करते हैं, यज़न्नून ज़ा नून नून जन की जमा है, गुमान करना, सोचना। आयत को फिर से देखिए, वमिनहुम उम्मीयून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं, इसमें से अहले किताब में से, ला यालमूनल किताब, कि उनको अपनी किताब के बारे में कुछ नहीं पता, यानी उल्मा तो जानते थे, लेकिन जो उनकी आम पब्लिक थी, जो आम लोग थे, उनको अपने दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ये बता देते थे वो बेचारे उस तरह से उनके पीछे चलने लग जाते थे। उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो उम्मी हैं, उनको कुछ नहीं पता। इल्ला अमानिया सिवाय ख्वाहिशात के, तो अमानी से क्या मुराद है यहाँ पर? अमानी से मुराद ये है कि वो झूठे किस्से कहानियाँ जो उनके उल्मा ने उनको सुना दी थे, यानी शॉर्टकट रास्ते बताना, शॉर्टकट रास्ते या झूठे किस्से कहानियाँ जो इनके उल्मा ने इनको बता दी थी, वो उसी को सच समझते थे और उसी को दीन समझते थे कि यही दीन है, यही सच है। यानी इन ख्वाहिशात को वो क्या समझते थे? दीन समझते थे। दीन समझकर वो उसको अपनाते थे, जबकि उसकी कोई हकीकत नहीं थी दीन के साथ, इस्लाम उसके साथ, तौरात के साथ। तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है कि बस वो बातें जो उनके उल्मा ने उनको झूठी सच्ची कहानियाँ बता दी, बस वो उसी को दीन समझकर बैठे हुए थे। व इनहुम इल्ला यज़न्नून, और वो गुमान करते थे कि वो ऐसा करने से क्या है? जन्नत हासिल कर लेंगे, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। अब
हमारे लिए ये क्या सबक है, क्या सिखाती है ये आयत, कि अगर आज हम मुसलमान अपने आप को इस आयत पर खड़ा कर कर देखें कि हम कितना अपने दीन, अपनी किताब के बारे में जानते, कितना पता है हम सबको। हाँ, एक सूरत फातिहा, हाँ, एक आउज़ु बिल्लाह की तफसीर क्या मतलब है इसका, एक बिस्मिल्लाह क्या मतलब है इसका, पता है हम में से किसी को? कुछ भी पता नहीं। हम अपनी नमाज में क्या लफ्ज़ दोहरा रहे हैं कितना पता है हम सबको, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय चंद लोगों के। आम पब्लिक का हाल क्या है, कुछ नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा, और बस उतना ही पता है जितना हमने अपने माँ बाप से देख लिया, जितना हमें हमारे माँ बाप ने इबादत के तरीके सिखा दिए, नमाज़ों के तरीके सिखा दिए, इसी बस, उसके अलावा तो हमको कुछ भी नहीं पता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग क्या हैं कि ख्वाहिशात के बिना पर या अपने माँ बाप की बिना पर, जो उनके माँ बाप ने सिखा दिया, या अपने रस्म व रिवाजों के तरीके पर जो दीन समझकर जो लोग अमल करते हैं, ऐसा दीन क्या है, एक गुमान है, एक ज़न है कि इंसान सोचता है इतना करके मैं जन्नत में चला जाऊंगा। हाँ, आज क्या हमारे मुसलमानों के अंदर, क्या हमें भी हमारे उम्मा से इल्ला माशाअल्लाह कि ज़्यादातर तो यही है कि जो कुछ हमको मिला हुआ है बस उसी को हम दीन समझ के बैठे हैं, हमारी अपनी कोई तहकीक नहीं। उन्होंने जो रास्ते हमको बता दिए उसको हम अपना कर बैठे हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर 2.5 सिपारे मरहूम को पढ़ के बख्श दो, निजात हो जाएगी। कहाँ से है ये? तो आज हम जो कर रहे हैं दीन के नाम पर, 99% हमारा दीन क्या है, जो हमने माँ बाप से, माहौल से, अपनी बरादरी से लिया हुआ है। 2.5 सिपारे पढ़ के बख्श दो, कहाँ है इसकी दलील? है कुछ ऐसा? और उसके बाद कब्र के अजाब के लिए कोई किसी का इंतकाल हो गया, सूरत तबारक पढ़ दो, कहाँ है इसकी दलील? कैसे कुरान उसको फ़ायदा दे देगा, उसको कब्र के अजाब से कैसे बचा लेगा, कि जब उसने सारी ज़िंदगी तबारक खुद ना पढ़ी, खुद ना समझी, अब उसको तबारक फ़ायदा दे देगी। हाँ, उसके बाद मरहूम के इंतकाल के बाद दाने ला कर रखे जाते हैं, अल्लाह का तस्बीह की जाती है, जिक्र किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो मरहूम को क्या फ़ायदा पहुँचाएगी ये बताइए? पढ़ने वालों के लिए तो अल्लाह का जिक्र है, लेकिन अगर नीयत दुरुस्त नहीं है, वो अल्लाह ही को पता है कि कितना कबूल होता है कितना नहीं। अगर अल्लाह के लिए पढ़ा जा रहा है ठीक है, लेकिन अगर मरहूम की बख्शिश के लिए हम बैठ के वो काम करते हैं तो वो कहाँ है दलील उसकी? क्या सहाबा इकराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा कोई अमल था जो करते थे? ये क्या है? ये अमानी है, ये ख्वाहिशात का दीन नहीं है, ये देखा देखी का दीन बना लिया है हमने। ये दीन कबूल नहीं होगा। हाँ, ये दीन अल्लाह नहीं कबूल करेंगे। इसी तरह से ऐसे बहुत से शॉर्टकट हैं जो आज हम मुसलमानों में भी अपनाए जा रहे हैं, जिनको हम दीन समझकर कर रहे हैं। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि सिवाय ख्वाहिशात के ये कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ये गुमान है हमारे कि ये कर कर हम जन्नत में चले जाएंगे, जब तक कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद अमल ना करे। और मरहूम के नाम पर खाना देना, उसकी फातिहा करना या 10वां करना या 20वां करना, बरसी मनाना, तो मरहूम के नाम पर खाना देना, तो बताएं अगर वो जन्नत में है तो उसको आपके खाने क्या करने हैं उसने? अगर वो जहन्नम में है तो अल्लाह उसको पहुंचाएंगे आपका खाना? कैसे पहुंचा देंगे अल्लाह? वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, कुछ नहीं पहुँचेगा, सिवाय दुआ की कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये दीन के नाम पर आज मुसलमान माशरे में हो रही हैं। कितने बिद्दात, कुरान खानी, घर बन गया कुरान पढ़ा लो, मुश्किल आ गई सूरत फतह पढ़ लो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो। ये जो भी बनाए हुए तरीके हैं इस्लाम के, इसको इस्लाम समझकर हम कबूल कर रहे हैं, ये हमारी अमानियात हैं, ये हमारी ख्वाहिशात का दीन नहीं है। ये तो सब बनी इसराइल भी करते थे, उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती थी, लेकिन उनको अल्लाह ने क्या कहा कि वो उम्मी हैं, वो अनपढ़ हैं। क्यों? उनको किताब का इल्म नहीं। तो जिसके पास किताब का इल्म ना हो, जो किताब को समझ कर ना पढ़ता हो, उसको यहाँ पर उम्मी कहा गया है।
देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम अपने आप को देखें, हम बड़े बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, डॉक्टर बनकर बैठे हैं, हाँ, ऐसे बड़े बड़े सर्टिफिकेट पर माएँ भी खुश होती हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में कोई कबूल नहीं, कोई डिग्री कबूल नहीं अगर उसके साथ साथ कुरान नहीं है, कुरान का इल्म नहीं है। उसके बगैर इंसान क्या है? अनपढ़ है, जाहिल है। अगर कुरान का इल्म नहीं, ये किताब में साफ कहा गया है कि उम्मी है, वो जाहिल है, जो ला यालमूनल किताब, जो किताब नहीं जानते, किताब नहीं पढ़ते, इसके लफ्ज़ों को नहीं समझते, हाँ, वो जाहिल हैं। लेकिन हमें ये जाहिल कहलवाना बुरा नहीं लगता, हाँ, जिसको अल्लाह ने जाहिल कह दिया उसको हम बुरा नहीं समझते, लेकिन कोई इंसान हमको जाहिल कह दे, हाँ, कितना बुरा लगता है हमको, कितनी शर्मिंदगी हो जाती है। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाहिल फरमा रहे हैं, उसके बावजूद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको किताब समझ ना आती हो वो जाहिल है। और दूसरी चीज़ ये भी पता चलती है कि किताब पढ़े बगैर इंसान को सही बात नहीं पता चलती। चाहे आप कितनी किताबें हदीस की पढ़ लें, कितने लेक्चर सुन लें, वो एक इन्फॉर्मेशन है, बस इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं है। असल जो समझ आती है इंसान का, जो सीना खुलता है, जो अमल बदलता है, वो आती है जो किताब पढ़ने से। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है ना ये। आपने दीन को इस किताब के ज़रिए से फैलाया था, लेक्चरों के ज़रिए थोड़ी फैलाया था कि कोई एक टॉपिक ले लो उसके ऊपर लेक्चर दे दो। ये भी सुनिए, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रही मैं, लेकिन इससे दीन मुकम्मल नहीं होता इतना सुनने से। आप कितने भी लेक्चर सुनते रहो, आज तक सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा हमारे अंदर? कोई फ़र्क आया? तब्दीली आई? लेकिन एक किताब, ये एक सिपारा इंशाअल्लाह अगर आप समझ कर पढ़ते हैं, आप खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। क्यों? सुन्नत है ये सही तरीका है कि जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आदम अलैहिस्सलाम को, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। क्यों? उनको नबूवत दी और फिर साथ उनको अपने पैगाम दिए कि ये लोगों को पढ़ के सुनाओ, इसके ज़रिए से लोगों की इस्लाह करो। और आज उम्मत मुसलमान का हाल देखो, कितने कोर्सेज कर लेते हैं, ये वो, लेकिन असल जो कोर्स है कुरान का, इसका समझकर पढ़ना, वो नहीं पता करने का। जबकि अल्लाह की नज़र में वो जाहिल है, वो अनपढ़ है, जिसको किताब समझ नहीं आती। तो हम सबको इस बात को अपने दिल पर लेना है कि या अल्लाह, कहीं आपने ये मुझे तो बात नहीं कही, क्योंकि मैं भी कुरान नहीं समझती। और इस बात को इतना अपने दिल पर लें कि मैं इंशाअल्लाह इस बात को करके रहूँगी, कि मैं इंशाअल्लाह कुरान को पढ़ के रहूँगी समझ कर, और इंशाअल्लाह फिर उसके मुताबिक अपना अमल भी बदलूँ। तो ऐसे लोग इंशाअल्लाह, तो इल्ला अमानिया ख्वाहिशात व इन इल्ला यज़न्नून, वो सिर्फ गुमान कर रहे हैं कि हम जन्नत हासिल कर लेंगे। गुमान से जन्नत नहीं मिलती, हाँ, खाली माँ बाप के तरीक़ों से चलने से जन्नत नहीं मिलती। जब तक कि इंसान तहकीक करके कुरान को समझ कर अमल नहीं करता, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होना, उनके तरीके के मुताबिक हमारा हर अमल, स्टैम्प किसकी चलेगी वहाँ पर? रसूलुल्लाह की। कोई इमाम अपने आप को ये इमाम के पीछे, सब इमाम से ही हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन किसको पकड़ो? इमामों के इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ो। हर चीज़ में उनके तरीके को पकड़ो अगर तुम कामयाब होना चाहते। हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह का, हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह का। चाहे वो सोम है, चाहे वो सलात है, चाहे वो सदक़ात हैं, चाहे वो कोई भी नफली इबादतें हैं, चाहे वो ज़िंदगी के दूसरे अमल हैं, हर चीज़ को किस पर देखो? सुन्नत पर देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया? असहाबा इकराम की ज़िंदगी ऐसी ही थी कि वो हर वो अमल करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ बाप का दीन, रस्म व रिवाजों का दीन, ये फॉर्मल दीन, ये अल्लाह के पास बिल्कुल कबूल नहीं होगा अगर वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। फ़वाइल आयत नंबर 79। फ़ा पस यानी हरूफ अदफ़ होता है ये,
ज्वाइंट करने के लिए, पहली और पिछली बात को जोड़ने के लिए। वैल खराबी है, वैल जहन्नम का भी नाम है। बस खराबी है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यक्तुमूना जो लिखते हैं, काफ ता मीम इसका रूट है, कतमा जो लिखते हैं, अल किताब किताब को, बी ऐदीहिम बी साथ, ऐद यानी किसकी जमा है, यद की, याद यद, यद कहते हैं हाथ, ऐद दोनों हाथ, बी ऐदीहिम साथ अपने हाथों के, सुम्मा फिर, यकूलूना वो कहते हैं, कौल की जमा यकूलून, और वो कहते हैं, कौन कहते थे, ये किसकी बात हो रही है, उनके उल्मा की, यहूद के उल्मा की। हाजा ये मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है। क्यों कहते थे ऐसा, लियश्तरू ताकि वो ले, यश्तरू शरा से है, शीन रा हमजा पीछे भी गुजरा है ये लफ्ज़, यानी कोई चीज़ का देन लेन करना, कोई चीज़ खरीदना, कोई चीज़ उसके बदले में बेचना, ताकि बोले बिही बदले इसके या साथ इसके, तमनन कीमत, कलीलन थोड़ी, फवैल बस हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो, कतबत लिख लिया लिखा, ऐदीहिम उनके हाथों में, वाह और वैल हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो, यक्सिबून वो कमाते हैं। यक्सिबून का रूट भी पीछे गुजरा है, काफ सीन बा कसबा। ये बार बार मैं इसलिए दोहराते जा रही हूँ, हालांकि ज़्यादातर लफ्ज़ जो हैं वो रेपिटिशन पर हैं, नए लफ्ज़ बहुत कम होते हैं, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आपको एक बार अगर आप नज़र मार लेंगे तो और इल्म आपका पुख्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। काफ सीन बा इसका रूट है, कसबा यानी किसी फ़ायदे के लिए काम करना, कसब कहलाता है, या मेहनत मजदूरी करने वाला। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें फिर यहूद के उल्मा की बात कर रहे हैं कि फ़वैलुल लज़ीना यक्तुबूनल किताब, हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब को लिखते हैं अपने हाथ, यानी मुराद इससे भी उनके उल्मा है, यानी अपनी बातों को वो क्या कह के देते थे, दीन बनाकर पेश करते थे। सुम्मा फिर यकूलूना फिर वो कहते थे, कौन, उल्मा उनके अहले किताब के, हाजा मिन इंदिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है, यानी इसको रिलेट किससे कर देते थे, अल्लाह से, कि ये अल्लाह का हुक्म है। लियश क्यों करते थे ऐसा, लियश्तरू भी सामानन कलीला, ताकि इसके बदले में वो कीमत ले लें थोड़ी, लोगों को उनकी मर्जी के बातें बताकर क्या कहते थे, ये अल्लाह का हुक्म है, और फिर उसके बदले में क्या, लोग खुश हो जाते थे, और वो क्या करते थे, इनाम के तौर पर कोई तोहफा, कोई हदिया या उसकी कीमत ले लेते थे। लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह की कलाम को अपने हाथ से लिख देते थे। लियश्तरू बिही समानन कलीला, वो उसके बदले में कीमत ले लेते थे। फ़वैल बस हलाकत है, अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह उनके लिए, मिम्मा कतबत जो उन्होंने लिखा, ऐदीहिम उनके हाथों से, यानी उनके लिए क्या है, वैल है, जहन्नम है, बर्बादी है उनके लिए जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, वह वैल और हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून जो उन्होंने उसके बदले में कमाया, उस पर भी हलाकत, उस पर भी जहन्नम है उनके लिए, उस कमाई के ऊपर भी जो उन्होंने। अब ये यहूद के उल्मा का हाल बताया जा रहा है कि वो लोगों को खुश करने के वास्ते क्या करते थे, उनकी मनमर्जी के माने मतलब निकाल के उनको बातें बताते थे। अब फिर अपनी तरफ आ जाइए, आज मुसलमानों के अंदर देखें, क्या आज मुसलमानों में अल्लाह माफ़ करे ऐसे काम नहीं हो रहे कि जो बात कुरान में जो नहीं होती या जिसका हुक्म कुछ और होता है उसको बदल कर कुछ और पेश करके बता देते हैं, ताकि लोग, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि लोगों को मर्जी की बात भी मिल जाए और फिर उसके बाद में उनको फ़ायदे भी मिल जाएं और लोग खुश हो जाएं। अब खुश हो जाएंगे, निकाह के मसलों पर देख लें, और बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिनको आलिम जब फतवा दे देगा तो फिर दूसरे आम लोग तो मानेंगे ही ना, जब वो हलाल कर देगा। हज उम्रे के देख लें कि कितने लोग इस हालत में हज उम्रा करने आते हैं कि उनके साथ महरम नहीं होता। हाँ बताइए, इस्लाम में, कुरान में है ये चीज़, बग़ैर महरम के औरत
हज उम्रे के लिए जा सकती है। लेकिन मैं कितनी औरतों को ऐसा देखती हूँ कि वो कहती हैं हम आलिमों से फतवा लेकर आए हैं, आलिमों ने कहा है। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो वही बात होगी जो, क्यों, हमें खुद तो कुरान के बारे में कुछ नहीं पता है, लिहाजा क्या करते हैं कुरान के। अब जैसे किसी ने पूछा जी वो उनकी नानी कोई है, बहुत बूढ़ी हैं, तो उनके शादी है, तो लिहाजा उनको किसी आलिम साहब ने कह दिया कि जहाँ ले जाओ शादी में, वो तो इतनी बूढ़ी हैं, ये तो उनके लिए है इद्दत, जिसको अभी जवान हो, जिसका निकाह होने वाला हो। नाउज़ुबिल्लाह, भली ऐसा तो कहीं नहीं है लिखा हुआ। इस चीज़ को मैं तो कभी नहीं कहूँगी, चाहे उम्र के किसी हिस्से में भी है औरत, जब इद्दत अल्लाह ने कह दी तो इद्दत है। जब अल्लाह ने कह दिया मुहर्रम के बगैर औरत न हज करे न उम्रा करे। कितनी औरतें मदीने में बैठी रहती हैं, मदीने में रहकर उम्रा करने नहीं जाती, मक्के नहीं जाती, क्यों? उनके पास महरम नहीं होते, बाप भाई शौहर दामाद। ये कहाँ से आती हैं? ये किससे फतवे लेकर आती हैं? ऐसे लोगों से जो लोगों को खुश करने के लिए दीन को बेच देते हैं। बाकायदा किसी ने बताया मुझे कि 2500 दिया, उन्होंने कहा ठीक है हज पे चली जाओ, वो रिश्तेदार तुम्हारा वो ये रिश्ता दूर का रिश्ता नज़दीक करके बता दिया, जबकि महरम की लिस्ट साफ है इस्लाम कुरान में दी हुई कि कौन कौन महरम है। तो ये वजह एक ये भी है कि हमारी कम अक्ली भी है कि हम जब दुनिया की किताबें पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े PhD कर सकते हैं, इतने मुश्किल पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं, हाँ क्या क्या नहीं आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ये किताब नहीं पढ़ते, ना हम खुद पढ़ते हैं, ना हमारे माशरे में पढ़ाई जाती है, और ना ही हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसको समझकर पढ़े बगैर इंसान कभी नहीं सीख सकता, कभी बदल नहीं सकता। आप सुबह से शाम तक तिलावत कर लें, आप पढ़ते रहें, लेकिन जब तक इसको समझेंगे नहीं, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का अमल नहीं बदलते और इंसान को हक़ और बातिल में पहचान नहीं होती जब तक वो इसको समझेगा नहीं। आयत नंबर 70-80 वो कालू, और वो कहते हैं, लन हरगिज़ नहीं, तमस्सना छुएगी, मीम सीन इसका रूट है, अन्नार आग, इल्ला सिवाय इसके, अय्याम दिन, अय्याम प्लूरल है, यौम का जमा का सीगा है, मादूदात गिनती के, ऐन दाल इसका रूट है, अदद उर्दू का लफ्ज़ है गिनती करना, गिनना, काउंट करना। कुल कह दीजिए, आ क्या अत्तखज़्तुम, तुमने ले रखा है, अलिफ खाजा या हमजा खाजा अखज़ इसका रूट है, क्या तुमने ले रखा है, इंदल्लाह अल्लाह के पास, अहदन कोई अहद, फलन तो हरगिज़ नहीं, फा तो लन वही ऊपर भी गुजरा है लग कि हरगिज़ नहीं, युखलिफुल्लाह खिलाफ करेगा अल्लाह, अहदहु उसके अहद को, अम या तक़ूलूना तुम कहते हो, अलल्लाहि अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं जो नहीं, तालमून तुम जानते। अब इसमें यहूद और नसारा की जो है एक और उनका जो गलत कॉन्सेप्ट था उसको खोला गया है कि वो क्या कहते थे, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार, वो कहते थे कि हम आग में नहीं जाएंगे, आग हमें नहीं छुएगी, अय्यामम इल्ला अय्यामम मादूदात, सिवाय इसके कि चंद दिन। क्यों कहते थे ऐसा? क्यों? वो समझते थे हम चूज़न पीपल हैं, हम नबियों की औलाद में से हैं, तो लिहाजा हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। बाकी लोगों को गुमराह कहते थे, वो अपने अलावा यहूद बाकी सबको गुमराह कहते थे, तो कहते थे तुम रहोगे जहन्नुम में, हम तो अगर गए भी तो चंद दिन जहन्नुम में जाएंगे। या फिर बाज़ ये कहते थे कि हमने 40 दिन गाय की पूजा की थी, तो इसलिए वो 40 दिन के बदले क्या होगा, एक यानी कुछ दिनों का हमको अजाब होगा उसकी वजह से। हाँ, तो उसके इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रद्द किया जा रहा है कि हम चूज़न पीपल हैं, हम नबियों की औलाद में से हैं। ये उनके जो मनगढ़ंत ख्यालात या ऐसे बातें करते थे, अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुल अत्तखज़्तुम, यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने कोई अल्लाह से वादा लिया हुआ है? तुम्हें अल्लाह ने कोई वादा किया है कि तुम आग में नहीं जाओगे, तुम्हें आग नहीं छुएगी? वलन युखलिफल्लाहु अहदा, तो ठीक है अगर अल्लाह ने कोई वादा किया है तुमसे तो अल्लाह भी अपना वादा पूरा करेगा।
लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। कैसे ये तुम जो बात कह रहे हो इस पर सबूत क्या है तुम्हारे पास? हम तो कुलूना, और अगर तुम ये बात कह रहे हो अल्लाह अल्लाह पर, अगर ये तुम बात अल्लाह पर कह रहे हो तो इसका प्रूफ लेकर आओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? माला तालामून, जो नहीं तुम जानते, फिर ऐसी बातें मत कहो जो अल्लाह ने नहीं कही हैं। ऐसी बात करना क्या है, इंसान को कुफर में लेकर चली जाती है। वो बात कहना जो अल्लाह ने ना कही हो। अल्लाह हम सबको भी हिदायत दे। हम भी अपनी मन घड़त फिलॉसफियाँ बहुत सी बना लेते हैं। हाँ, तो ऐसा फलाना जन्नती है, फलाना जहन्नमी है, फलाना मुशरिक है, तो कभी किसी के बारे में कोई ऐसी राय नहीं देनी चाहिए। अल्लाह को बेहतर पता है, अल्लाह जान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं बला, क्यों नहीं, ये हाँ के लिए भी आता है, यस, क्यों नहीं, मन कसबा, जिसने कमाया, सय्यआ, बुराई को, सय्यआ भी सीन वाव हमजा इसका रूट है, सू पिछले गुजर चुका है, यानी जो सय्यआ है ये ज़ाहरी और मानवी दोनों किस्म की बुराइयों के लिए आता है, यानी छुपी भी और ज़ाहरी बुराई भी दोनों के लिए आता है सय्यआ। भला मन कसबा, क्यों नहीं, फोशोर, जिसने कमाई कोई भी बुराई, वा और अहातत, वो घेर लेगी उसको। अहातत उर्दू का लफ्ज़ है, अहाता करना, हा तो हमज़ा इसका रूट है, बिही उसको, खतियातु उसकी ख़ताएँ, खतियातु उर्दू का ही है ये भी, खा तो हमज़ा ख़ता, यानी ऐसा गुनाह जो अचानक हो जाए वो ख़ता कहलाता है। फ़उलाइका, तो यही वो लोग हैं, यही है वो लोग, अस्हाब साथी अन्नार, आग के, हम वो फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं, यानी फिर वो उसमें से निकलेंगे नहीं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके कंसेप्ट को यहाँ पर दूर कर रहे हैं कि तुम ये जो कह रहे हो ये गलत है कि हमें आग नहीं छुएगी, हम कितने भी गुनाह कर लें, हम चंद अगर गए भी तो चंद दिन के लिए जाएंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं बला मन कसब सय्या, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोई बुराई करेगा, चाहे वो ज़ाहरी है चाहे वो छुप के है, वह आहातत, वो घेर लिया जाएगा, उसको गुनाह उसको घेरा जाएगा, बिही खतियातुहु, किसकी वजह से, उसकी खताओं की वजह से उसको पकड़ा जाएगा, चाहे कैसे भी कितना भी छुप कर क्यों ना कर ले। फ़उलाइका, तो ये वही लोग हैं, अस्हाबुन्नार, जो साथी होंगे आग के, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यानी उनके कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है कि जन्नत या जहन्नम इंसान को उसके अमलों की बिना पर मिलेगी, खाली ख्यालात या अपने मन घड़त फिलॉसफियों से नहीं मिलेगी। जो जिस तरह का अमल करके जाएगा उस बिना पर उसके अमल उसको घेर लेंगे, पकड़ लेंगे, अच्छे अमल हैं तो भी, बुरे अमल हैं तो भी। इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि आप अपने अमल की फ़िक्र करो, ये फ़िक्र ना करो कि मैं ऐसे, यानी मेरी अपने बच्चों को बात समझते हैं हाफिज़ बना दिया तो हम भी जन्नत में चले जाएंगे, माँ बाप समझते हैं, या बाप आलिम है तो औलाद भी जन्नत में चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान के अपने अमाल ही उसको जन्नत में लेकर जाने का सबब बनेंगे और अमाल ही इससे इंसान को जहन्नम में लेकर जाने का। तो इससे हम मुसलमानों का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। हम समझते हैं कि कपड़ा दे के, खाना दे के, उसके नाम के सूरत कुरान पढ़ के बख्श देंगे तो हमारे मरहूम बख्शे जाएंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि कोई किसी का मन घड़त कंसेप्ट इंसान को अल्लाह से उसके गुनाहों से नहीं बचा सकता। गुनाहों की सज़ा तो मिलेगी, समझ आए कि गुनाह तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। अब ये अल्लाह को पता है वो पड़ा हुआ, वो दिया हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी कोई दलील तो साबित नहीं है। इसके बारे में एक हदीस है कि आप एक आयत कहिए कर लेंगे। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, वाह और आमिलू, उन्होंने अमल किए, अस्साले, सालेहात, सालेह की स्वाद लाम इसका रूट है हा, अच्छे, नेक, उलाइका, ये वही लोग हैं, सहाबुल जन्ना, जो साथी हैं जन्नत के, हम वो फीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग अच्छे काम करेंगे तो वो नेक, यानी ईमान लाने के बाद अमल साले इंसान को जन्नत में लेकर जाएंगे, ख्यालात नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि क्या लेकर जाएंगे, ईमान लाने के बाद उसका अमल उसको जन्नत लेकर जाएगा।
تو خیالوں میں مت جیو کہ ہم مسلمان ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ میں بہت قرآن پڑھتی ہوں تو جنت میں چلی جاؤں گی، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹی دیکھو۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ ایکٹیویٹی۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہر وقت ہر عمل کیا کہلاتا ہے؟ ڈوئنگ سم تھنگ۔ وہ کس کے مطابق ہے؟ کیا اللہ کے کتاب کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق؟ تو خالی کچھ خاص نیکیوں کو ہی نہ سمجھ لو کہ یہ جنت میں لے کر چلے جائیں گے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے صلوات درود پڑھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹی دیکھو۔ آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ چند عمل کر کر یہ سمجھ نہ لو کہ جنت مل جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔